moments of love, heartbreak, and even celebration, and the emotional connection is what truly defines, the greatness of the legend who is no longer with us. And this is a big void that can never be filled. Viewers, it's a huge loss for the film industry, for the music industry. And in fact, there are several social media posts as well that have been put out by prominent personalities. We also have actor Saira Banu joining us on the phone line. Saira Banu, this is indeed an unfortunate piece of news that we're tracking. Asha Bhosle ji is no longer with us. It's a huge loss for the film industry and the music industry. Your first thoughts? It is an absolute loss, not a huge loss. It is something which is irreplaceable. These people have been irreplaceable. Lata ji, Asha ji, Mohammad Rafi Saab, Mukesh ji. They have all been gems, absolutely. Gems, and no matter how great the singers of the future will be, but these will always be remembered for their wonderful voices, their wonderful ways, so many things, unforgettable. Ma'am, what was your first memory of, hearing Asha Bhosle's voice? What was your first memory? If you could, define it for our viewers. My first memory was of somebody very, very wonderful. Jaise ke when I heard Lata ji also, or Rafi Saab also. Asha ji's voice had a wonderful quality, of being very suitable for Western song, Western type of songs, modern songs at that time, and also for classical, and a certain number of songs which Lata ji herself declined to do, she would not want to do those. So Asha ji unko pasand karti thi, acha gaati thi. She was more suited for certain songs, the Western type. जैसे Helen जी के numbers कितने अच्छे होते थे. You remember Helen ji's dance numbers? So Asha ji was very suitable for those numbers. That's right, ma'am. Great artist, yes. Great Ma'am, artist. did you ever interact with her personally? And if you did, what was, what was that thing that stood out about her personality? Dekho bhai, we have been the Mangeshkars and Rafi Sahab and also Mukesh ji. We've all been family, you see. Lata ji and Asha Bai, they have been family because Lata ji has tied a rakhi to Dilip Sahab almost all her life. And Lata ji traveled with Dilip Sahab and his team of people where he was working. They used to all travel by train at one time, spend time together, and, discuss work together. Similarly, Asha ji was very close to us, and there were ins and outs of our houses, of our homes. She was very close to us, and both the sisters would come to our house because they revered my grandmother very much. My grandmother has been a great classical singer, and they were always so full of love and affection for her that whenever they would come to the house, they would first meet her, touch her feet, and then go ahead with anything. Ma'am, you've literally seen the golden era of cinema. So what really... Of course. Yeah, so what really, made Asha Bhosle very special in that golden era? What made Asha Bhosle what? Special among all the other playback singers in that golden era of cinema. Yeah. Exceptional in a way that she had a huge range, as I just mentioned. She had a huge range of being able to sing very westernized kind of music, also referring to other types like ghazal, classical also. Both the girls were trained in classical by their father, I believe. And खूब range था आशा भोसले का, आशा जी का बहुत range था. And
whenever she would work with me, she would always laugh and इशारा करती थी अपने गले की तरफ, and she would say, you know, Saira, I'll have to thin down my voice for you a little bit. बारीक करनी पड़ेगी, तुम इतनी छोटी हो और इतनी पतली आवाज है तुम्हारी. So whenever she would be recording inside the studio, she would make me sit down on the sofa next to her. She would be standing at the mic और इशारे से अपने गले की तरफ हंस के मुझे इशारा करती थी कि देखो मैं आवाज पतली कर रही हूँ तुम्हारे लिए. That is a great memory. And then recently in Ramzan, she sent a message on, I think, on one of the channels. And I was so pleased to see her send a wonderful message of Ramzan to everybody. So beautifully done that she said, you know, कि सबके साथ जो है अच्छा हो, सब पीसफुल हो, and आने वाले ईद के लिए मुबारकबाद सबके लिए, which I think was a wonderful, wonderful thing to do at that time. And I called her back. Thank God, just about a month ago, or a little more than that. And I told her that how wonderful it was to listen to her, and what a great thing she had done, you know, by sending a message of peace all over the world. She was very thrilled with that कि सायरा ने मुझे ऐसे कहा है. She was very happy. That's right, ma'am. And Saira Banu ji, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. We also have Usha Uttap joining us on the phone line. Ma'am, how are you processing the loss of Asha Bhosle, and what did she really mean to you personally as a fellow singer? Usha ji, if you could hear me. Seems like we've lost the connection. We also have Gajendra Chauhan, actor, joining us on the phone line. Gajendra ji, आप कैसे process कर रहे हैं इस loss को? Because this is an absolute loss in Saira Banu's own words. This is a big void that can never be filled. How are you processing it, sir? I think Saira ji is very right. और मैं भी यही कह रहा हूँ कि दूसरी आशा भोसले कभी वापस नहीं आएगी. दूसरी आशा भोसले जन्म नहीं लेगी, क्योंकि आज का दिन जो है वो कला के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, देशवासियों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. और आशा जी की आवाज में जो जादू था वो अपने आप में अद्भुत था. इसलिए अद्भुत था कि उन्होंने वेस्टर्न गाने गाए, इंडियन गाने गाए, क्लासिकल गाने गाए. हर फॉर्म में आशा जी ने गाना गाया, और उनके गाने की शैली ऐसी होती थी कि कितना भी डिफिकल्ट गाना हो उसको इतनी आसानी से गाती थी, लगता है कि पानी की तरह जो है उन्होंने गा के निकल गई. बहुत बार उनसे स्टूडियो में मुलाकात हुई. मेरी जो फिल्में होती थी, उनके जो गाने रिकॉर्ड होते थे, उसमें कई आशा जी ने गाने गाए, और हम लोग वहाँ स्टूडियो में होते थे और उनसे मुलाकात होती थी, बातें होती थी. और मुझे याद है वो दिन उनका 83rd बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और मुझे इन्वाइट किया था, और मैं गया था उनके बर्थडे पे. और जब वो स्टेज से उतर के आई तो सीधा मेरे पास आई, और उनका जो कॉम्प्लीमेंट था मेरे दिलो दिमाग में आज तक जमा हुआ है. उन्होंने कहा था महाभारत में तुमने बहुत अच्छा काम किया है. तो मतलब एक लीजेंड के मुंह से एक मेरे जैसे छोटे कलाकार के लिए ऐसे शब्द जो हैं वो जीवन भर की पपौती होती है. मैंने तो वो मुट्ठी बांध के रख लिया कि कितने बड़े कलाकार ने मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है. तो मैं आशा जी को हमेशा हमेशा के लिए मिस करूंगा, और मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों लोग दुनिया में जो म्यूजिक लवर्स हैं, म्यूजिक के चाहने वाले हैं, आर्ट के चाहने वाले हैं, वो हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि आशा चली गई और सबको निराश करके चली गई. आशा एक आशा थी दो लोगों के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए आशा थी. और मैं यही कहूंगा कि परमात्मा जो है उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. As far as your personal experience is concerned, आपका favorite moment apart from the one that you just told us about your interaction with her on a set, what was your favorite moment that you would cherish forever? एक तो यही था, और दूसरा जो है स्टूडियो के अंदर तो कई मोमेंट्स होते थे कि आशा जी का क्या था, सबसे खूबसूरत बात है जैसी स्टूडियो में आती थी हर किसी से बात करती थी.
उनके लिए ना कोई छोटा था ना बड़ा था। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो आशा जी की थी वो थी ग्राउंडेड, बहुत जमीन से जुड़ी हुई कलाकार थी। हर किसी को उतनी ही महत्वता देती थी, उतनी ही इंपॉर्टेंस देती थी जितनी उनके अंदर क्षमता थी। और कई लोग तो छोटे कलाकार खो के पीछे हो जाते, लेकिन वो जाके उनसे खुद मिलती थी, म्यूजिशियन से मिलती थी। और जब तक वो माइक पे नहीं जाती थी सबके साथ हंसी खेलते हुए, एक तो उनके अंदर सेंस ऑफ कॉमेडी बहुत था, छोटे छोटे पंचेस करती थी, तो उसमें क्या है एक माहौल क्रिएट हो जाता था। और जब तक वो गाना गाने लगती थी तब तक सब कुछ तैयार हो जाता था उसके लिए। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जिस एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए उन्होंने गाना गाया, उसकी आवाज को उन्होंने कॉपी किया। अगर शिल्ड वॉइस है तो शिल्ड वॉइस बना के किया उन्होंने गाना गाया, अगर हैवी है थोड़ा तो हैवी करके गाया। तो आशा जी को जो चेंजेस ऑफ वॉइस था वो बहुत ही अद्भुत था अपने आप में, और ऐसी कलाकार दोबारा जन्म लेना नामुमकिन है। Sir, and as far as her journey is concerned, she was definitely, way ahead of her time in embracing, bold and unconventional song styles. What do you think, sir? डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है, जैसे मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां कला नाम के लिए कुछ स्थान ही नहीं था। पता नहीं परमात्मा ने कैसे करके मुंबई भेज दिया और एक महाभारत जैसा सीरियल मिल गया। ऐसे ही आशा जी बहुत छोटी जगह से आई और एक ऐसा मुकाम हासिल किया। इसमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं भाग्य का होता है, भाग्य तो होता ही होता है, आपका कर्म भी होता है। जिस तरह से उन्होंने अपने कर्म को निभाया और म्यूजिक के प्रति अपनी जो डेडिकेशन थी वो उन्होंने लाइफ लॉन्ग रखी। आपको कला का जीवन जीना है तो उसमें आपको एक तपस्या करनी पड़ती है, एक त्याग देना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें भूलनी पड़ती है अपनी जिंदगी से। शायद वो सब चीजें करके आशा जी जो है यहाँ पहुंची हैं। और आशा, ये जीवन चले जाना, ये ऐसा लगता है कि अचानक जो है कोई चीज हमारे हाथ से छिन गई और वो छिनी हुई चीज अब वापस कभी नहीं आएगी। ये अपने आप में बहुत ही हमको डराता है, एक कलाकार को डराता है। ये जो चीज हमने इतने सालों में ग्रहण की, इतने सालों मेहनत करके पाई, वो अचानक चली गई तो ये कभी वापस नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि 12 अप्रैल 2026 के बाद आशा जी लाइव हमको और आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। ये डराती है ये बात। एक लीजेंड बनने में आप सोचिए कि 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया और 92 ईयर्स में उन्होंने शरीर त्यागा। 82 साल म्यूजिक की तपस्या की है, अपना त्याग किया है, बहुत सारी चीजें त्याग की होंगी। तो वो सब करके अगर आप लीजेंड बनते हैं और फिर एक झटके में आप इस जीवन से चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं हमको भी डराती है अंदर से कि भाई ये सबके साथ होना है ठीक है, लेकिन जो हमने तपस्या की उसका क्या, वो तो ऐसे की ऐसे रह गई। अब मैं इसके आपके साथ आपने समय दिया है, मैं यही कहूंगा कि नए कलाकारों को कोशिश करना चाहिए कि आप जो है जो आशा जी छोड़ गई हैं उसके मुकाम को हासिल करने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए और आपको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। में ऑटो ट्यून बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बट व्हेन आशा जी यूज्ड टू सिंग, देयर वाज नो ऑटो ट्यून, देयर वाज नो टेक्निक ना। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, आजकल बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जी। नॉन सिंगर सिंगर बन गए हैं, एक एक लाइन गाते हैं और जोड़ के तोड़ के मरोड़ के। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले जब हम डबिंग करते थे तो एक लूप होता था, वो लूप पूरा डब होता था एक साथ एक ही फ्लो में। अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो दोबारा करना पड़ता था। आज क्या है, छोटे छोटे वर्ड्स खराब हो जाते तो उतना वर्ड बोल के आपकी डबिंग हो जाती है। तो टेक्निक जो है वो चेंज हो गई है काफी। ऐसे ही सिंगिंग में भी ऐसा ही है। बहुत सारे मैं देखता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, नॉन सिंगर सिंगर बन गए हैं, वो अपने आप को सिंगर बोलते। लेकिन आशा जी का जो टाइम था वो सचमुच में सिंगिंग का टाइम था। उन्होंने कोई टेक्निक नहीं अपनाई, कोई म्यूजिकली कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जिससे टेक्निक में उनको हेल्प हो। उन्होंने रियली गाया है, लता जी ने रियली गाया है, और जितने भी उस वक्त के सिंगर हैं उन्होंने गाया है। लेकिन आज के सिंगर जो है थोड़ा मैन्युपुलेट करके अपने आप को उस मुकाम तक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आशा जी बनना है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं की तरह गाना पड़ेगा।